زی جن سمواد میں آج زی میڈیا کی ٹیم مدھیہ کشمیر کے بڈگام ضلع کے سوئیبگ علاقے میں پہنچی ہے۔ یہ گاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ گاؤں والے بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور خوبصورت بڈگام کا یہ جو گاؤں ہے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کافی پرابلمز ہیں، ان کی جو ڈے ٹو ڈے پرابلمز فیس کر رہے ہیں، اور وہ جو ان کے مسئلے ہیں، جو ان کی دویدھائیں ہیں، وہ جو ادھیکاری ہیں، چاہے پھر وہ ودھایک ہو، چاہے پھر وہ یا ان کا ایم پی ہو، یا پھر کنسرن ادھیکاری ہو، اس تک پہنچانے کا بیڑا جو ہے زی میڈیا نے اٹھایا ہے۔ اور اسی کے چلتے آج کشمیر کے اس خوبصورت گاؤں میں ہم بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں جی آپ کا نام کیا ہے؟ سر میرا نام ہے محمد اسحاق وانی۔ اسحاق صاحب، اس گاؤں کو کیا بولتے ہیں اور یہ کتنا دور ہے سری نگر کیپٹل سے؟ سری نگر کیپٹل سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے۔ جو یہاں سے جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ یہاں سے بائیں طرف جاتے ہیں HMT سوئیبگ پارم پورہ روڈ ہے، یہاں سے یہ 11 کلومیٹر دور ہے لال چوک تک۔ تو جب جو دائیں طرف روڈ جاتا ہے، یہاں سے آدھا کلومیٹر آگے بائیں طرف ٹرن لے کے بڈگام سے یہ 7 کلومیٹر دور ہے۔ یعنی اگر بات کریں تو یہ گاؤں سینٹرلی لوکیٹڈ ہے، بہت نزدیک ہے سمر کیپٹل کے، لیکن پھر بھی آپ بولتے ہیں کہ کافی پرابلمز ہیں جو آپ فیس کرتے ہیں۔ کون سی پرابلم ہے جو سب سے زیادہ آپ کو لگتی ہے یہاں پر آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے؟ سر یہاں ہم کتنی پرابلمیں آپ کو گنائیں، فی الحال میں ایک دو کی نشاندہی آپ کو کروں، اور ہمارے جو یہ باقی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں گاؤں کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا امام صاحب بھی ہے، ہمارے یہاں ایک ماسٹر صاحب بھی ہے، باقی یہ بزرگ ہے اور یہ مزدور جوان ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی اپنا اپنا بتائیں گے۔ لیکن میں آپ کو فی الحال یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں گاؤں میں 1962 میں PHC ہاسپٹل بنا ہے۔ تب ڈسٹرکٹ بڈگام میں 3 ہی سب ڈسٹرکٹ یہ PHC ہاسپٹل تھے، تو ان دنوں نیا ہی ڈسٹرکٹ بھی بنا ہوا تھا۔ تب ان دنوں جب سینٹرل گورنمنٹ نے یا اسٹیٹ گورنمنٹ نے ہمیں پرووائڈ کیا تھا PHC، تب سے آج تک PHC ہی رہا، یہ تو کبھی اپ گریڈ نہیں ہوا، کوئی فیسلٹی اس میں نہیں ہے، کبھی نہ یہ کمیونٹی ہال بنا، نہ کمیونٹی سینٹر، نہ یہ سب ڈسٹرکٹ بنا۔ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری نالج میں جتنی میری ایج ہے، کم سے کم میں آپ کو بتاؤں کہ میں 40 سال کا بندہ ہوں، تو میں جب دیکھ رہا ہوں، جب سے میں نے آنکھیں کھولی ہے، تو میں سن رہا ہوں، اپنے بابا سے بھی سنا ہے، باقی بزرگوں سے بھی سنا ہے، اور سکول میں بھی میں نے سنا ہے، اپنے جو استاد صاحبان تھے ان سے بھی سنا ہے، جو یہاں کے بزرگ ہیں ان سے بھی سنا ہے، بار بار ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں جو بھی گورنمنٹ فیسلٹی ہونی چاہیے کوئی نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں 3 یا 4 گورنمنٹ بلڈنگیں ہیں ابھی تک، جب سے دنیا میں بارسس آئی ہے سوئیبگ، اور جب سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، یا جب سے ہندوستان نے اپنی حکومت سنبھالی 1947 سے، تب سے آج تک 4 یا 5 گورنمنٹ بلڈنگیں ہیں۔ اس میں ایک پرائمری یہ گورنمنٹ یہ پرائمری یہ ہائی اسکول بنا ہوا ہے گرلز کا، وہ ابھی پینڈنگ ہے، ایسا ہی بنا ڈھانچہ تو بنا ہے۔ ایک یہی پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے، ہو گئے 2، اور ایک پنچایت گھر ہے، ہو گئے 3، اور دوسری جگہ اور ایک پنچایت گھر انہوں نے بنایا ہے، اس میں ابھی بلاک ڈیولپمنٹ آفس بیٹھا ہوا ہے پچھلے 12-13 سالوں سے، وہ وہاں فنکشنل ہے، لیکن پنچایت گھر ہے، بلڈنگ کی آفس نہیں ہے، بلاک ڈیولپمنٹ آفس کی نہیں ہے وہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ یہاں ہے، ہمارا جو یہ گاؤں ہے، یہ بلاک ہیڈ کوارٹر بھی یہاں ہے، اور یہاں نائب تحصیلدار صاحب بھی بیٹھتا ہے، اس کا آفس بھی یہاں ہے۔ منسلک جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہے، آلموسٹ جو زمیندار لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے یا گاؤں کے ساتھ علاقے کے ساتھ وابستہ ہے، ان میں زونل ایجوکیشن آفس بھی یہاں ہے، یہاں زونل ایگریکلچر آفس بھی ہے، یہاں زونل ہارٹیکلچر آفس بھی ہے، یہاں یہ کیا بولتے ہیں اس کو ہائر سیکنڈری اسکول بھی ہے، گرلز ہائی اسکول بھی ہے، پرائیویٹ بلڈنگ میں ہے۔ مسئلہ جو بھی کوئی ادارہ ہے پرائیویٹ بلڈنگوں میں رینٹڈ ہے، عمر در عمر وہ تب سے آج تک رینٹڈ پہ ہی ہے، کوئی ان کی بلڈنگ نہیں بنی ہوئی، جب کہ ہم نے 2014-15 میں پرووائڈ کی ہے گورنمنٹ کو یہاں اسٹیٹ لینڈ، یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کالج ابھی بنا ہے 8 سال سے لیکن پینڈنگ ہے۔ یہاں ہم نے زمین گورنمنٹ کو اس ٹائم پرووائڈ کی تھی کہ ہم آپ کو زمین دیں گے، جو بھی سارے اتنے ادارے ہیں ان کو آؤ اور یہاں ڈیولپ کرو، تب سے لے کے ہاں لیکن عمل کوئی نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میں آؤں اپنے مدعے پہ کہ پرائمری ہیلتھ سینٹر ڈسٹرکٹ بڈگام کا 3رے نمبر پہ اس ٹائم تھا جب بڈگام ڈسٹرکٹ آیا، تب سے آج تک کوئی اپ گریڈیشن نہیں، سب ڈسٹرکٹ ہسپتال بھی نہیں بنا، اس میں کوئی بلڈنگ بھی ایک پرانی تھی، وہ 7-8 سال پہلے ڈیمالش کی گئی، پھر نئی بنائی گئی بلڈنگ جب آئی، اس کے 2 پورشن، فرسٹ فیز اس کا بنا، دوسرا فیز ابھی پینڈنگ ہے، پچھلے 7-8 سالوں سے وہ پینڈنگ ہے۔ اس کی یہ کیا بولتے ہیں اس کو پوائلنگ کی ہوئی ہے،
कम से कम 1 करोड़ रुपया पाइलिंग में भी खर्चा हुआ है, लेकिन बिल्डिंग अभी नहीं बन रही है। हमने 12 बार गवर्नर साहब से भी गुहार लगाई थी। जो हमारा अभी नया 2 साल से बना हुआ चीफ मिनिस्टर है, इससे भी बताया था। इससे पहले इसकी कोलेशन जब इसकी हुकूमत थी तब इसको हमने बताया था, तब भी ये चीफ मिनिस्टर तब भी इसको बताया था। पीडीपी कोलेशन गवर्नमेंट आई, उनको भी बताया था, लेकिन टस से मस से कोई नहीं हो रहा है। हमारा हाल कोई सुनता ही नहीं है। मेरी आप गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, आपके वसादत से मैं गवर्नमेंट से ये पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो। मैं उनसे आपके वसादत से हाथ जोड़ के ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके हमारे गांव की तरफ भी देखिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा की कि अब हालात ठीक हो गए, अब मिलिटेंसी भी ख़त्म हो गई है। अब लोग ये चाहते हैं कि हमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन की होनी चाहिए, जितने भी फैसिलिटीज़ है पूरी मुल्क में हमें भी वो मिलनी चाहिए। रोड हो, पावर हो, बिजली हो, जो भी है, पानी हो, जितने भी कोई सुविधाएं हैं वो हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आप तो देखिए ये 11,000 चुलूं का ये गांव है, और सबसे पहले मुद्दा जो इन्होंने बताया वो था यहाँ का हेल्थ, यानी यहाँ 11,000 चुलूं को हॉस्पिटल फराहम नहीं हुआ है 1947 से। और अगर हॉस्पिटल की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी आम आदमी के लिए अस्पताल होता है, क्योंकि बीमार हर किसी को पड़ना है, अस्पताल की ज़रूरत है। तो ये एक मुद्दा था। और भी हमारे साथ साथी है यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, क्या मुश्किल आप बताएंगे अपने गाँव की? मैं बताऊंगा, ये आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अपना टाइम निकाला है, आप हमारे पास हमारे गांव में आए थे। यहाँ सबसे पहले ये प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यहाँ आए थे पिछले 2021 में, 2023 में इनको मुकम्मल करना है ये कॉलेज। बदकिस्मत की वजह से 1 साल हो गए ये मर्ज। ये पहले इनके साथ है, क्या नाम है इसका, JKPCC। अब ये 1 साल के लिए मर्ज हुआ है। ये गया था कन्वर्ट किसके साथ, RNB के साथ। RNB के साथ उनका इस वक्त वो डिस्प्यूट चल रहा है। वो डिस्प्यूट चल रहा है कि इसके काम पे कि JKPCC ने दिया है सपोज़ 1 फुट की 900 रुपये। अब RNB बोल रहे हैं कि हम आपको देंगे 700 रुपये हैं। इस वक्त काम इसीलिए बंद थे। पहले तब काम ठेकेदारों ने ऐसा स्लो काम किया था, इसमें कोई शक नहीं थी। कभी काम किया, कभी बंद हुआ, कभी काम किया, कभी बंद हुआ। लास्ट नतीजे इस रिज़ल्ट इस पे निकला है कि इस वक्त गवर्नमेंट का प्रॉब्लम थे, क्योंकि ठेकेदार साहब बोल रहे हैं कि हमें लफ्ज़ है इस चीज़ पे कि 1000 रुपये हम आपको फुट में देंगे। RNB बोल रहे हैं कि नहीं 700 है। अब गवर्नमेंट और ठेकेदार के बीच में आप लोग पिस रहे हैं। हाँ, हम लोग पीस रहे हैं, वरना ये कब से ऐसे बिल्डिंग कब 2023 में मुकम्मल करना। कितनी मुश्किल होती है कॉलेज जाना होने बहुत से मुश्किल। हमारा जो कॉलेज जो लड़के जो पढ़ते हैं इस वक्त कॉलेज की ज्वाइन करने, वो हाई सेकेंडरी में उनका बेचारा दूर जाना पड़ता है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर से दूर है, क्योंकि उनकी जगह ही नहीं है। वो बेचारा बोल रहे हमारा शर्ट वर्ट बना के दे दो, हमारे बच्चे वहाँ करेंगे ग्रेजुएशन या PG करेंगे। यहाँ पे बिल्डिंग ही खड़ा नहीं है। ये वो बदकिस्मती हमारे गाँव की ही बदकिस्मती है। और कोई बहुत मसाइल है जो आपने इसाक साहब ने बताया था। हमारा मतलब गवर्नमेंट का ये हाई सेकेंडरी यहाँ बना है बेगम मोहल्ला में, वो भी आधा बनाया, आधा छोड़ के रखा, ऐसे ही पड़ा है। हमारे को समझ नहीं आ रहा है कि हमारा क्या कौन सी बदकिस्मत है कि ऐसे छोड़ के तो चले जा रहे हैं। बदकिस्मत की वजह से हम आपको आपकी वसादत से आपको ये अपने ZTV से ये प्रोग्राम आगे तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल। आप देखिए, ये 2 मुद्दे हुए, सेहत और उसके बाद शिक्षा। दोनों में इस गांव के साथ व्यवहार जो है ठीक नहीं रहा है। यहाँ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों के मुताबिक नहीं है, और शिक्षा के लिए इनके कॉलेज तो दिया गया है, लेकिन 2018 से केवल बिल्डिंग का ढांचा भी नहीं बना है, बल्कि प्लिंथ है, उससे ऊपर आता ही नहीं है। और भी मुद्दे हैं यहाँ पर। ये हमारे बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, जो उनसे जवान भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर मुद्दे क्या हैं। और आप यहाँ पर बैठे हैं, पीछे आपकी अच्छा, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मंजूर अहमद मलिक साहब। मंजूर साहब, ये पीछे ज़मीन में देख रहा हूँ, यहाँ पर खुली पड़ी है, पानी है, इससे कितनी दिक्कत होती है? कभी आपने इस पे सवाल उठाया? ये मेरा मकान है पीछे, इसके पीछे बहुत दिक्कत आती है हमको। हमने पिछले 5-10 दिन के पहले मैंने मिट्टी डाला इसके पीछे, वो पूरा मिट्टी इसी के अंदर गया था। हमने बहुत बार इनको रिक्वेस्ट किया इसको पानी कम करो,
करता नहीं है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है। ये देखो सब पीछे देखो कितना पानी है इसमें, इससे हमको बहुत प्रॉब्लम होते हैं। इससे बीमारियां भी उठती होंगी जब बीमारी भी उठते हैं और बच्चे भी यहाँ घूमते हैं, उनको भी डरते होते हैं अगर पानी खुदा न खास बचेगा इसमें तो गिर जाएगा, वही प्रॉब्लम होता है हमको। तो कभी आपने उनके पास जाके शिकायत की? उनको हमने लगभग 50 बार आज तक शिकायत की। इश्ताक साहब ने भी ये भी गया 50 बार, वो भी आए थे इधर, उन्होंने भी चेक किया इधर। उमर अब्दुल्ला साहब को भी हमने रिक्वेस्ट किया, बोला हो जाएगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ इसके बाद। ये इनके पीछे वाइल्ड लाइफ का जो वेटलैंड है वो है, लेकिन इसका सीधा असर इनको पड़ रहा है। इसमें जब वाटर लेवल ऊपर आ जाती है तो इनके घरों में पानी आता है। इनके छोटे छोटे बच्चे जो है डर रहता है कि इसमें चले जाएं तो डूब सकते हैं। इनके मकान जो इसके किनारे बने हैं वो ढह सकते हैं। तो इसकी भी कहीं ना कहीं सुध आज तक नहीं ली गई है। और हम यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं वो हालांकि उर्दू तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? खजर मोहम्मद मलिक। खजर साहब उर्दू बोलेंगे आप? नहीं, उर्दू। उर्दू में आप कश्मीरी में मुझे बोलिए कचा मुश्किल छोते यथ गाँव सठा मुश्किल आई यमो वोन तम साथ अस गंडो गांड उस त्रो वंदस मज वंदस थो पुशने हिंद खतर तो पत गो जमींदारन वशन यल त्रावान कि सठा मुश्किलात सठा मुश्किलात यूता मुश्किलात मे बसान चाल वायन घास कह बनान नबर नेरुन बच्चस न बनान नबर नेरुन वुचान जनाब तुम आब कोता सठा मुश्किलात आव बे क्या मुश्किल गाँव मुश्किलात वारिया गाँव वारिया स्कूलन हंद यमन हंद अच्छा जाल वह बस्ती जनाब सारे आबस मज वह क्या करो अस करो राह खुदा पास अद क्या खुदा पास करो अस राह वनुक तम वुचमुत यह तूफान कह बहुत 7 वोहर मगर यह वुचमुत कि आज वुच गटकार यह कोर अस वाइल्ड लाइफन अद क्या गांड गुंडुक सजेट। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी दिक्कत है इनको, इनकी ये शिकायत है जो ये बात कर रहे हैं। कुल मिला के इस गांव में अगर हम बात करें, कुछ लोग जो सामने आए हैं उन्होंने हमसे बात की है। इसमें बेसिक कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें, बिजली, पानी और साथ ही साथ सेहत, रोड, इन सब चीज़ों के मुद्दे हैं। और ये गांव सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, केवल 12 से 11 किलोमीटर समर कैपिटल श्रीनगर से दूर है। तो कहीं ना कहीं जी मीडिया की ये कोशिश है कि इन इलाकों में जो है जाकर लोगों से बात करे। और एक साथी हमारे साथ, जी आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद वानी। नज़ीर साहब, किस किस्म की मुश्किलात है जो अनहर्ड है, जिसे सुना नहीं गया है अभी तक? मैं कितना बताऊंगा आप तो आप कितना सुनेगा। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। हमको हो गई जब से मैं यहाँ इतना बड़ा हो गया हूँ तब से शिकायत ही शिकायत है। कोई शिकायत हल नहीं हो गई आज तक कोई शिकायत हल नहीं हो गई। बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं बोलूँगा स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, मगर कुछ नहीं बनता है। हम बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, यहाँ बहुत लोग बोलते हैं, मगर कोई कुछ नहीं करता है। वोट के वक्त आपको वादे करते हैं? बिल्कुल, जब वोट आते बस बोलते हैं ये भी करेंगे वो भी करेगा। वोट आज हमको वोट दे दो, हम सब कुछ करेगा। बाद में कुछ नहीं करता है। बाद में कोई कुछ नहीं करता है। बाद में नज़र नहीं देखता है, किसी की तरफ नहीं देखता है। ये पीड़ा हमें समझनी होगी। वोट जब होता है, जब लोकतांत्रिक हक एक आम आदमी के पास होता है, जब उसकी ताकत होती है, तब उससे वादे किए जाते हैं बहुत कुछ करने के, लेकिन इस गांव में कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ है। बारहा यहाँ हुकूमतें बदली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, PDP रही है, गवर्नर का रूल रहा है, कोलिशन गवर्नमेंट रही है, लेकिन सब गवर्नमेंट एक जैसी रही है। और सोइबो इलाका अगर हम बात करें, इन लोगों की अगर हम बात करें, आम लोगों की, उन्हें पीड़ा ही सहनी पड़ रही है। और लगातार आज तक जो है इस इलाके में पीड़ा सहने का सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चल रहा है। और 70 साल के बुज़ुर्ग से हमने बात की, वो भी वही दुखड़ा रो रहा है। और 40 साल के जवान से भी हमने बात की, वही दुखड़ा रो रहा है। तो आज जी संवाद में हमने आपको कश्मीर के इस सोइबुग इलाके का हाल बताया। उम्मीद है कि आप इससे बात करेंगे। एक और मुद्दा है जो यहाँ से सजल मुझे बोल रहे हैं। जी आपका नाम? जावेद अहमद डार। क्या मुद्दा बोलना चाहते हैं आप? मुद्दा यह है कि बदकिस्मती से कहना पड़ता है, जो हमें रिंग रोड बना है
इस पे हमें कोई कनेक्शन नहीं दिया है, मतलब उतरने या चढ़ने का मौका नहीं दिया है। और दूसरी तरफ ये जो एक हेड क्वार्टर है, किलो फोर्स का हेड क्वार्टर है, बस 1 किलोमीटर दूरी है, इसकी ये भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ है वो गुलमर्ग, तोश मैदान, दूध पथरी, इससे भी ये कनेक्ट होता है। हम ये चैनल से वसादत के साथ मतलब कनेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल कनेक्ट किया जाए रिंग रोड से। रिंग रोड यहाँ से बना है, ये काफ़ी बड़ा रिंग रोड है जो पुलवामा, शोपियान और उस तरफ से जोड़ते हुए इसको पूरा नॉर्थ कश्मीर में ले जाता है और इसी गांव से होता हुआ जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये गांव वालों की दुहार है कि इस रोड को उस रिंग रोड से कनेक्ट नहीं किया गया है, वो भी एक मुद्दा है। तो आज जी मीडिया की कोशिश रही कि सोइबुग इलाके से जो खूबसूरत इलाका है, हरा भरा है, वहाँ से लोगों की मुश्किलें जो है आप तक पहुँचाए, उन अधिकारियों तक पहुँचाए, उन जो विधायक है या फिर अगर हम MP की बात करें उन तक पहुँचाए जो इनके सुध ले सके। और 47 से लेकर आज तक जो पीड़ा ये सह रहे हैं उसमें इन्हें कई हद तक राहत मिले। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, सोइबुग, बडगाम।